کیا آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کا استعمال کرنے والے 95% لوگ چیٹ جی پی ٹی یا جیمینائی یا ڈیپ سی کسی بھی اے آئی کا ٹول استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف عام اور بیکار جوابات حاصل کرتے ہیں، جبکہ صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی جادوئی جملہ لکھتے ہیں اور اے آئی ان کا وہ کام منٹوں میں کر دیتا ہے، جس کے لیے عام لوگوں کو پورا دن لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، فرق اے آئی کا نہیں، فرق اس بات کا ہے کہ آپ اے آئی سے بات کیسے کرتے ہیں، جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ۔ اس فن کو کہتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ۔ آج کی دنیا میں ایک بات بالکل سچی ہے کہ اے آئی آپ کی جاب یا آپ کا بزنس نہیں چھینے گا، بلکہ وہ انسان آپ کو ریپلیس کر دے گا جس کو پرومپٹ انجینئرنگ آتی ہوگی، جس کو اے آئی سے کام کروانے کا ڈھنگ آ چکا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اے آئی آپ کا پرسنل ایک سیکٹری بنے اور آپ کا رائٹ ہینڈ بنے اور آپ کا ڈیزائنر بنے یا آپ کے بزنس کو 10 گنا تیز کرے، تو اگلے 30 سے 40 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی منٹ ثابت ہونے والے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کوئی لمبی چوڑی خشک اور تھیوری نہیں پڑھیں گے، اور لائیو وہ تمام فریم ورکس اور فارمولے نہیں سکھاؤں گا جو آپ کو انٹرنیٹ پر کہیں اور اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے۔ اور ایک اور بات ذہن میں نشی کر لیجیے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ہم 80-20 کا رول استعمال کریں، کہ وہ فارمولے آپ کے سامنے رکھوں جن کے ذریعے آپ کے 90% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بگنر ہیں اور آپ نے پرومپٹ انجینئرنگ کے بارے میں پہلے کچھ نہیں سنا پڑھا، تو بے فکر ہو جائیں، آپ آئندہ صرف 30 منٹ کے بعد کم سے کم آپ اس قابل ہوں گے کہ اے آئی کو آپ نے بہتر طور پر پروفیشنل انداز میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس لیکچر کے بالکل آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ماسٹر پرومپٹ سیکرٹ بھی شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کی تمام کنفیوژن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، لیکن وہ صرف ان لوگوں کو سمجھ آئے گا جنہوں نے اس کلاس کے تمام اصول سمجھے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی بھی کویسچن ہو تو اس کو گروپ میں مینشن کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں کے ابھی تک اسائنمنٹ جمع نہیں ہوئی، سبمٹ نہیں کروائی، تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ اور کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ کا کنفیوژن ہو، کہیں پر بھی کوئی آپ کو ایشو آئے، تو بغیر کسی پریشانی کے اپنے بھائی کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہتر طور پر حل ملے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی اس کلاس کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ پرومپٹ انجینئرنگ ہوتی کیا ہے۔ ایک انسان سے بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں سے سوال کیا ہے، زید نے بکر سے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، عمر نے خالد سے سوال کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم وہی سوال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کسی بھی ٹول سے کریں، اے آئی کے ذریعے کریں، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے نے فلاں ٹول کو پرومپٹ دیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرومپٹ، سادہ زبان میں یہ پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے مصنوعی ذہانت کو اس انداز میں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے بہتر طور پر ہمارے نتائج ہمیں فراہم کر سکے۔ اب اس کے اندر کون کون سے اصول ہوتے ہیں اور کیا چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ ایک بات اور ذہن نشی کر لیں کہ اگر آپ کا سوال اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی ہدایت ابہام ہوگا، یعنی کہ وہ غیر واضح ہوگی، تو پھر جواب بھی آپ کا ظاہر سی بات ہے وہ بھی غیر واضح ہوگا اور وہ بھی غیر سب سے پہلے آتا ہے جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر وہ آتا ہے رول، کہ آپ نے اے آئی کو اپنا رول بتانا ہے، یعنی اے آئی کو یہ واضح کردار دیں کہ تاکہ وہ آپ کو بہتر انداز میں جواب دے سکے۔ یعنی کہ رول کو ڈیفائن کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آپ اے آئی کو بتا سکتے ہیں کہ بھی کوئی کام ایسا ہے، مثال کے طور پر آپ اس سے کہیں کہ آپ ایک ماہر استاد ہیں تو اس حوالے سے میری رہنمائی کریں، آپ ایک سینئر مارکیٹر ہیں اس کے حوالے سے ایک تحقیقی مصنف ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے ریسرچر ہیں، مینیجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اس کو رول دینا چاہیں۔ تو رول اس کا پہلا وہ ہے۔ ابھی ہم اس کو پریکٹیکل طور پر میرے خیال سے سیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح طور پر اس کا سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پر آپ کے سامنے آتا ہوں ایک نیو چیٹ پر آنے کے بعد میں سمپل یہاں پر سرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو بتا بھی دیتا ہوں، ایک منٹ۔ اس چیٹ کے اندر ہم صرف اسکرپٹ لکھیں گے، اشتہار یعنی کہ ڈیزائننگ، تصاویر وغیرہ نہیں بنائیں گے۔ میں کچھ ہدایات دوں گا، ان کو آپ نے نوٹس کرنا ہے اور بہتر طور پر اچھا سا اسکرپٹ ہمیں دینا ہے تاکہ ہم بعد میں بہتر طور پر ایک اچھا ڈیزائن تیار کر سکیں۔ میں نے اس کو کچھ ہدایت دے دی ہے تاکہ یہ بار بار ہمیں اس طرف نہ کھینچ کے لے جائے جہاں پر ہمیں جانے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اسے کہتا ہوں میری آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے ایک اچھا سا ڈیزائن تیار کریں۔
स्क्रिप्ट लिखें। ठीक है, ये एक सिंपल सा और सादा सा मैं एक आपके सामने उसूल रखने जा रहा हूँ कि कोई भी आपका, उसने यहाँ पर लिख भी दिया कि ऑनलाइन कुरान अकेडमी। ठीक है, इसको हम बाद में चीज़ों को सीखेंगे भी। ठीक है, तो कुछ हिदायत मैंने पहले दी हुई तो उस वजह से वो नीचे नंबर और बाकी चीज़ों को खुद ही मेंशन कर रहा है। ये तो इसको हो गया इसका पहला काम। इसको हम उर्दू में भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा हो गया पहला काम कि हमने एक आम सी प्रॉम्प्ट दी है, इसको कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, और क्या करना क्या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोल क्या होता है। अब मैं इससे कहता हूँ, आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कॉपी राइटर हैं। मेरी ऑनलाइन कुरान अकेडमी के लिए ऐसा इश्तिहार लिखें जिससे नए तलबा दाखिला लेने में दिलचस्पी महसूस करें। ये पहला पॉइंट है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने उसको रोल दिया है कि भाई आप कौन हैं और आपने क्या करना है। उसको हमने बताया कि भाई प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, यानी कि आप कॉपी राइटर, एक बेहतरीन कॉपी राइटिंग करते हैं। तो अब देखिएगा, अब मैंने इसको जब किरदार दे दिया है, ये पहला हमारा रोल था कि हमने इसको रोल देना है कि रोल क्या होगा। तो ये पहला पॉइंट है। तो अब इसका ज़रा जवाब देखें, वो किस अंदाज के अंदर है। ठीक है, वगैरह वगैरह। इन तमाम जितने मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, इनकी मैं आपको तस्वीर भी शेयर करूँगा ताकि आपको सही तौर पर अंदाज़ा हो सके। ये हो गया कि रोल क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं एक नेक्स्ट चीज़ को कि आपने इसको सियाक़ो सबाक़ भी देना है। सियाक़ो सबाक़ का माना क्या होता है, यानी बैकग्राउंड बताना कि भाई कौन हैं, क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक दूसरा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कॉपी राइटर हैं। हमारी ऑनलाइन कुरान अकेडमी में नूरानी कायदा, नाज़र कुरान पाक, तजवीद, हिफ़्ज़ की क्लासेस होती हैं। मर्द, ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग असातिज़ा मौजूद हैं। दुनिया भर से ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। ऐसा इश्तिहार लिखें जिससे नए तलबा दाखिला लेने में दिलचस्पी महसूस करें। अब समझ में बात आई, यानी ये को समझ में आया कि भाई ये बंदा क्या करता है, क्या नहीं करता। उसको तो नहीं मालूम कि भाई कुरान अकेडमी में क्या हो रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। खाली नाज़रा कुरान पाक है, हिफ़्ज़ की सहूलत है या नहीं है, मर्द ख़वातीन के लिए अलग चीज़ें हैं कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बेहतरीन अंदाज़ के अंदर उसने एक नया हमें स्क्रिप्ट लिख कर भी दे दिया है। अब आता है, इसको हम कहते हैं सियाक़ो सबाक़। तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपने हमेशा जहन में रखना है कि इसके ऊपर आपने कभी भी आसरा नहीं लगाना कि भाई एआई को पता ही होगा, इसके पास इतना नॉलेज है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा इसके पास इल्म आ चुका है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो लिहाजा इसको तो सारी चीज़ें मालूम होंगी कि मुझे क्या चाहिए। आप बिज़नेस करते हैं, टीचिंग करते हैं, जॉब करते हैं, आपको ऑनलाइन फील्ड के हवाले से कोई रोड मैप चाहिए। मिसाल के तौर पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट साथी भी हैं, वो कहते हैं यार मेरे पास सिर्फ मुझे कोई ऑनलाइन फील्ड में काम करना है। अब आप इसको मुकम्मल तौर पर बताएं कि भाई मेरा नाम मुजाहिद है, मैं फ़िलहाल कसूर लाहौर में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, और मेरे घर पर ये वाला माहौल है और ये मेरे पास टाइम होता है। इस टाइम पर मैं अकेडमी जाता हूँ, हफ्ते में इतनी छुट्टियाँ होती हैं, ये टाइम मेरे पास फ्री है, और मैं कोई ऐसी स्किल सीखना चाहता हूँ कि जिसके ज़रिए मैं कम से कम 2-3 घंटे दे सकता हूँ और मेरी कम से कम 2-3 महीने में मेरी जे पॉकेट मनी वो स्टार्ट हो सके। अब देखिए उसके जहन में फ़ौरन एक खाका होगा कि भाई वो अब आपको उन चीज़ों के ऊपर नहीं डालेगा जिनके अंदर 6 महीने लग जाएँ या 2-3 साल तक सिर्फ आप सीखते ही रहें और आपके हाथ में कुछ ना आए। अब आपको वो शॉर्टकट में वो तमाम चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा, वो रोड मैप में लेकर आएगा जिनके ज़रिए आप आसानी के साथ चीज़ों को फ़ायदे में लेकर आ सकते हैं। अच्छा चलें, खैर उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको बताते हैं जी, मिसाल के तौर पर एक गोल, यानी कि आपका टारगेट क्या है, मकसद क्या है, वो भी लाजमी डिफ़ाइन आपने करना ही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बताते हैं कि भाई जैसे हमने एक इश्तिहार का स्क्रिप्ट लिखा कि दोबारा भी लिख देते हैं कौन नए अंदाज में, मेरी ऑनलाइन कुरान अकेडमी के लिए ऐसा इश्तिहार लिखें जिससे नए तलबा दाखिला लेने में दिलचस्पी महसूस करें। आप कोई बता सकता है इसको यहाँ पर? आप कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा हमने गोल सेट किया है? बहुत आसान और इजी है कि हमने इसको बताया कि भाई हमें ऐसा इश्तिहार डिज़ाइन करना है जिससे नए जो हमारे पास एडमिशन हैं, नए दाखिले हैं, वो आ सकें। तो अब ज़ाहिर सी बात है उसने फ़ौरन उसका क्या है अंदाज़ बदल दिया है। अब इसमें देखिए आप
क्या आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे कुरान करीम के सही तलफ़्फ़ुज़ और तजवीज़ के साथ सीखें? अब मैंने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके उसका इश्तिहार का डिज़ाइन और तमाम चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल दिया है। तो ये एक होता है गोल। अब आपने गोल भी बताना है, अभी जो कोई इश्तिहार डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, अभी मेरी टारगेट कौन है, मेरी टारगेट यंग हैं, फ़ीमेल हैं, मेल हैं, ठीक है, कौन सी यानी कि कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, बिज़नेसमैन हैं, जॉब वगैरह बंदे हैं। तो किसी भी हवाले से आपने उसको गोल यानी कि अपना क्लियर करना है। अब हमारी 3 चीज़ें हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने समझा कि इसको हमने कोई रोल देना है। अब रोल कोई भी हो सकता है, उसके बाद हमने आपको सबाक को समझा और तीसरे नंबर पर हमने गोल को भी समझ लिया है। अब एक चौथी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, अगर बात की जाए सादा और आसान लफ्ज़ों के अंदर, तो हम कहते हैं जी आउटपुट। हमें आउटपुट किस अंदाज में चाहिए, इसके ऊपर हम एक मुख्तसर सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कॉपी राइटर हैं। हमारी ऑनलाइन कुरान अकेडमी में नूरानी कायदा, नाज़रा कुरान, तजवीद, हिफ़्ज़ की क्लासेस होती हैं। मर्द, ख़वातीन, बच्चों के लिए अलग असातिज़ा मौजूद हैं। दुनिया भर से ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। फेसबुक पोस्ट के लिए मुख्तसर इश्तिहार लिखें। आगाज़ में ताकतवर हुक हो, फिर 5 फ़वाइद और आखिर में कॉल टू एक्शन हो, और ज़ुबान सादा पुरअसर उर्दू में हो। अब देखें, अब जो हमारा इसमें जो स्टाइल था वो तमाम चीज़ें बिल्कुल ही बदल चुकी हैं। तो बहरहाल ये आउटपुट का एक दूसरा अंदाज़ भी होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई किसी बिज़नेस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इसे बता सकते हैं कि भई आपने करना क्या है, यानी कि आपको जो जवाब है वो किस अंदाज़ में चाहिए, टेबल की शक्ल में चाहिए, ग्राफ की शक्ल में चाहिए, या फिर आपने मज़मून की शक्ल में आपका जवाब चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, बुलेट पॉइंट की शक्ल में। तो कुछ भी आप यानी कि आउटपुट लिख सकते हैं। तो अब इसको मैं और आपके लिए आसान कर देता हूँ। आपके ज़हन में अगर पूरी क्लास में से कोई चीज़ दिमाग में बिठाने वाली हो, समझने वाली हो, तो ये 2 फार्मूले आपने ज़हन में रखने हैं। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है कि आपने ये याद रखना है, कौन, क्या, क्यों, कैसे, किस अंदाज़ में। कौन, क्या, इसको मैं यहाँ पर इसकी एक तस्वीर बनाकर शेयर भी कर देता हूँ। ये अपने पास ग्रुप में आप सेव भी कर सकते हैं। बस आप को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से जब भी आप लिखने बैठें, कोई सवाल करने बैठें, तो आप के पास ये तमाम चीज़ें जहन में होनी चाहिए। चले मैं फ़िलहाल इसको तस्वीर वगैरह बनाने के लिए इसको मेंशन कर भी देता हूँ। कौन, क्या, क्यों, कैसे और किस अंदाज़ में। ये फार्मूला इतना आसान है। मतलब क्या है कि कौन यानी एआई किस किरदार में काम करे, ठीक है, टीचर हो, डॉक्टर हो, राइटर हो, बिजनेसमैन हो, क्या क्या यानी कि आप इससे क्या लेना चाहते हैं, इस और क्यों का क्यों मकसद क्या है, कैसे कोई ख़ास शराइत, कोई हदूद, कोई पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ भी कि मुझे इसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हों, लेकिन ये वाली चीज़ें इसमें शामिल ना करें। इसी तरह किस अंदाज़ में जवाब की किस फॉर्मेट में चाहिए। ये फार्मूला इंतहाई आसान है। कौन, क्या, क्यों, कैसे और किस अंदाज़ में, ठीक है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, यानी कि रोल आपने मुंतखब करना है, उसके बाद आपका मिशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी वो मालूमात आपने फ़राहम करनी है, और आपने कुछ रूल भी बनाने। इसी तरीके से आपने टाइप ऑफ आउटपुट, ये तमाम चीज़ें भी आपने शामिल करनी है। अभी क्लास में जहन में आई कि आपने अब क्या काम करना है कि अगर आपको सारी चीज़ें समझने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, बहुत ज़्यादा आप इसके हवाले से परेशानी आप लाहिक हो रही है, तो आपने सिंपल आना है जी, कहाँ पर आना है, गूगल जेमिनी पर आना है। गूगल जेमिनी पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैट जीपीटी पर मैं एक फ़ोल्डर यानी कि प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से, जहाँ पर मैं मल्टीपल मुख्तलिफ़ प्रॉम्प्ट रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कामों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं आती। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मैं मशीन से ही अपने लिए अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखवा सकूँ और अच्छे नताइज हासिल कर सकूँ। तो मेरे लिए कुछ एक
میرے لیے آپ ایک بہترین سا ماسٹر پرومپٹ لکھ کر دیں تاکہ چیٹ جی پی ٹی کو سمجھ میں آ جائے کہ اس بندے کو کیا چاہیے اور کس طرح کا اس نے رول ادا کرنا ہے، اور کس طرح اس نے پروفیشنل لیول پر پرومپٹ انجینئرنگ کے بہترین ہمیں پرومپٹ نکال کر اور لکھ کر دینے ہیں۔ یہ پہلا اور سادہ سا اصول آپ ذہن میں نشی کر لیں کہ اگر آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ نہیں بھی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پرومپٹ انجینئرنگ اب آپ کا دوسرا سولوشن کیا ہے شارٹ کٹ، کہ آپ کسی بھی اے آئی ٹول کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کا، گوگل جیمنائی کا، ڈیپ سیک کا، کسی کا بھی، اس سے آپ نے اچھے سے پرومپٹ لکھوانا ہے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے وہ آپ نے اے آئی کو بتانا ہے، اے آئی اس سوال کو بہتر ایک پروفیشنل انداز میں لکھے گا تاکہ جو نتائج ہمیں ملنے چاہیے وہ ہمیں نتائج مل سکیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہترین سا ایک پرومپٹ لکھ کر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر جاتا ہوں دوبارہ سے چیٹ جی پی ٹی پر، اور چیٹ جی پی ٹی پر آنے کے بعد سمپل میں یہاں پر یہ جمع کا آپشن نظر آ رہا ہے، نیو پروجیکٹ، میں یہاں پر سرچ بھی کر دیتا ہوں ہمیں پرومپٹ انجینئرنگ، جی یہ ایک فولڈر ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ فولڈر بنانے کے بعد یہ فولڈر تیار ہو چکا، اس کے بعد آپ نے جو وہاں سے پرومپٹ لکھوایا تھا وہ یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے گا ہمارے پاس ایک سادہ پرومپٹ میں اور ماسٹر پرومپٹ میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے، جی اس کی ایک اچھی سی کوئی مثال نکال کر دیں تاکہ مجھے واضح طور پر پتہ چل جائے کہ میرے لیے پرومپٹ انجینئرنگ کتنی اہم ہے۔ اب جی دیکھیے گا، اب اس نے خود ہی بتا دیا کہ میرے لیے آن لائن قرآن اکیڈمی کی فیس بک اشتہار لکھ کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک خراب یا یوں سمجھ لیں کہ بیڈ پرومپٹ ہے، لیکن اس نے لکھ دیا ہے اس کو ماسٹر انداز کے اندر، بہتر انداز میں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر آتے ہیں، یوٹیوب پر آپ سرچ کرتے ہیں کہ مجھے پروفیشنل آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے میں اب کام شروع کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا ایک ماسٹر پرومپٹ لکھ کر دیں اشتہار بنانے کے لیے، اور اشتہار انٹرنیشنل لیول کا ہو کہ میں اس کو فیس بک ایڈ پر رن کر سکوں۔ اب بتائیے گا، اب میرے لیے صرف یہ پرومپٹ لکھ کر دے گا، اور چند منٹوں میں آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے۔ ویسے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، بس کر رہا ہوں، بڑی دل آ گیا پیچھے تھوڑا ہی ہے، بس 2000 لکشم لگا ہوں، تیل بدلو ہوا کو، پلیٹ بدلی ہیں، وہ بھائی ادھر ابھی چارجر لگانے سے چلا گو میری تیل پی آگو کہاں سو آئے گا۔ اب اس نے دیکھیں ماسٹر ایک ہمیں اچھا پرومپٹ لکھ کر دے دیا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل اب آپ آ جائیں اس جگہ پر جہاں پر آپ اشتہار وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہاں پر کر رہا ہوں۔ اب اس کو میں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی جو میرے ذہن میں ایک نئی چیز آئی ہے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پر اشتہار رن کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انگلش میں ہونا چاہیے۔ انگلش میں پوسٹر ڈیزائن کریں، وہ بھی ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس ماسٹر پرومپٹ کے ساتھ جو بھی نیا رزلٹ بنے، جو نئی چیز سامنے آئے، وہ ہمیں بہتر نتائج دے سکیں۔
आगे बढ़ने से कबल एक और चीज़ भी ज़हन में रखें कि सबसे पहले आप का काम होता है सोचना, थिंकिंग करना, कि अपना मकसद को, सामीन को, ज़रूरी मालूमात को अच्छी तरह से वाज़ेह कर लें कि यार आपने करना क्या है, मैं जो काम करना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस कौन है, तमाम चीज़ें जब आपके माइंड में होंगी तो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इसी के साथ जब प्रॉम्प्ट बनाएँ तो उसको मुकम्मल करें। अगर ये एआई बस औक़ात ये भी उसको टेम्परेरी बनाकर दे देता है, तो आपने उसको मज़ीद उससे कहना है कि इसको एनहांस करें, इसको मज़ीद बेटर बनाएँ, इसको मज़ीद पावरफुल बनाएँ, जब तक आपको लगे कि यार ये उस लेवल तक नहीं आ गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इसके बाद एआई प्रोसेस होता है, यानी एआई आपको प्रॉम्प्ट को समझता है और जवाब तैयार कर देता है, लेकिन अगर आपका जवाब अच्छा नहीं लाता, उसको फिर दोबारा से रीडिज़ाइन करें, उसको फिर दोबारा से कहें कि भई ये उस लेवल तक नहीं जिस पर हमने काम करना है। इसी तरह रिफ़ाइन का मतलब भी यही होता है कि आप अपना जो काम उसने फिर दोबारा कर दिया है, उसको फिर दोबारा समझें, देखें और हर लिहाज से उसका पहलू नोट करें। और एक और चीज़ भी है कि आपने हमेशा क्या करना है, बेहतरीन, दुरुस्त और काबिल इस्तेमाल नतीजा हासिल करना है। और ये उसी वक़्त मुमकिन है जब तक आप प्रोफ़ेशनल लेवल तक अपनी चीज़ों को यानी कि अपग्रेड नहीं करते। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपने एक पोस्ट डिज़ाइन की और बस उससे कहा कि बस अब मेरे लिए पोस्ट डिज़ाइन हो गई है और दोबारा उसको समझने की, समझाने की और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, इसको आप देख भी सकते हैं। इश्तिहार तो बन गया है, लेकिन ये लेकिन ये अब उस लेवल का नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। यानी मतलब क्या है कि हमें इश्तिहार ऐसा चाहिए कि जो बंदा एक दफ़ा दिखे और देख कर कहे कि यार वाक़ई किसी बंदे ने मेहनत की है अपने कम से कम ऐड बनाने के ऊपर, चीज़ों को बेहतर करने के ऊपर। और यही सबसे बड़ा बुनियादी मकसद होता है कि आप अपनी चीज़ों को इतना अपग्रेड करते जाएँ कि वो ख़ुद ही कहें कि यार क्या शानदार किसी बंदे ने काम किया है। चलें, उम्मीद है कि हमारा इश्तिहार रेडी हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। तो ये देखिएगा जो हमने इश्तिहार बनाया है कितना बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर। अब इसको तकरीबन अभी 2, 4, 5 इश्तिहार इसके मज़ीद बनेंगे, फिर ये उस लेवल पर आ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत होती है। एक और चीज़ हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, वो क्या होती है, मिसाल के तौर पर आपने आना है जिसको हम कहते हैं फ्यू शॉट। अभी जो हमने पीछे शायद बात भी की थी इसके हवाले से कि ज़ीरो शॉट क्या होता है कि यानी वो तकनीक जिसमें आप एआई मॉडल को बगैर किसी मिसाल के सिर्फ हिदायत दे देते हैं। जैसे हमने उसे कहा कि भाई हमें ऑनलाइन कुरान अकेडमी के लिए इश्तिहार बना कर देते। लेकिन एक दूसरा तरीक़ेकार भी होता है जिसको हम फ्यू शॉट भी कहते हैं कि आपने आना है गूगल पर, यूट्यूब पर, जो भी चीज़ आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे अभी हमने आज ट्राई किया कि ऑनलाइन कुरान अकेडमी के हवाले से, ठीक है। अब यहाँ पर सैकड़ों इश्तिहार पहले से मौजूद होंगे गूगल पर आपने आना है, आने के बाद सिंपल सर्च करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि भी मुझे किस तरह का इश्तिहार डिज़ाइन करना है। ये बहुत ही एक अहम चीज़ है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मेरे ख़्याल से आपके बहुत सारे मसाइल खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें एक टेम्परेरी सा इश्तिहार कौन सा इसमें, खैर ये सारे बहुत ज़्यादा नॉर्मल इश्तिहार हैं, कोई ऐसा अच्छा पोस्टर डिज़ाइन समझ में आ नहीं रहा। जैसे हमें एक ये पोस्टर बच्चे का नज़र आया, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपल चले जाते हैं हम दोबारा से कहाँ पर, अपने चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी में जाते हैं और इसको हम ये कहते हैं, यहाँ से हम इसको डाउनलोड वाली जो पिक्चर है उसको यहाँ से निकाल